Hello, my dear lovely students. Welcome back to your English class. Students, in our today's English class, we are going to continue the lesson. Which lesson? The rhythm of life. We have started this lesson and we have completed half. So, the remaining half of the lesson we are going to continue today. Right? हमारा बचा हुआ लेसन था लेसन नंबर 3 का द रिदम ऑफ लाइफ का, वो आज हम कंटिन्यू करेंगे. So without wasting much of our time, come let's start our lesson. If you close your fist. Now what is fist? Underline the word F-I-S-T, fist. Now what do you mean by fist? Fist means what? See, when you close your palm like this. Yes, when you close your palm like this, so it is known as fist. जब आप अपनी मुट्ठी बंद करते हो ऐसा टाइट एकदम, तो इसको बोलते हैं फिस्ट. राइट? अंडरस्टूड? लाइक दिस यू डू, इट इज नोन एज फिस्ट. सो इफ यू क्लोज योर फिस्ट, ओपन इट एंड देन क्लोज इट अगेन, you can get a rough idea of the action of the heart. Now what is given here? When you open fist or when you close it tightly, you get the idea of action of heart. जब आप अपनी फिस्ट को मतलब अपने पाम को जब बंद करते हैं, है ना, टाइटली, एकदम टाइटली जब बंद करते हैं और बंद करने के बाद जब ओपन करते हैं, यस, यू कैन सी लाइक दिस द एक्शन ऑफ हार्ट. हार्ट का आप एक्शन देख सकते हो. कैसे? If you open and close your fist at the first rate, we will feel the tired in couple of minutes. मतलब आप जब बंद करने के बाद आप जब फिस्ट खोलते हो तो आप देखते हो क्या? Yes, the marks you can see. आप अपने हाथ में मार्क्स देख सकते हो. You can feel tired in a couple of minutes. आपके हाथ में कुछ मिनट्स के बाद आप टायर्ड, यानी कि जैसे मैंने बंद की थी और ओपन की थी, यस, यू कैन सी समथिंग, सो इट इज नोन एज टायर्ड. सो यू कैन सी द टायर्ड इन कपल ऑफ मिनट्स, बट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड्स एट अबाउट 72 times in a minute, more than once a second, but not thinning at all. Now what is given here? द मसल ऑफ योर हैंड फील टाइट. आपके हाथ का जो मसल है ना, वो टाइट फील करता है. बट द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांड 72 times. मतलब अपना जो हार्ट है वो कितने टाइम्स? 72 times वो एक्सपैंड और एक्सट्रैक्ट करता है. मोर देन 1 second, मतलब 1 सेकेंड में 72 times अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और एक्सपांड करता है. And not thinning at all. Not thinning at all means वो बिल्कुल भी thinning नहीं करता है. कौन? अपना हार्ट. Clear? Now human heart is pear shaped, red brown in color and weight is about 340 grams. Now our human heart, as you can see in the picture, this is the picture of a heart. ये हमारी हार्ट की पिक्चर है. It is pear shape. pear shape, pear means beans, right? green beans, हरा मटर होता है ना, उसको बोलते हैं pear. and our heart is also like a pear shape. See, pear shape. and what is the color? Red brown color. What is the color of a heart? Red brown in color, means red color is also there, but along with red color brown color is also there. red color के साथ साथ brown color भी है. and what is the weight of a heart? Right? Any idea? Yes, it's 340 grams. How much is the weight? 340 grams. मतलब 340 grams, not kilo. किलो नहीं है. It's only 340 grams and maybe up to 15 centimeter long. मतलब 340 ग्राम उसका वेट है और 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब लंबा है. And it is its widest point 10 centimeter across. Now widest point, wide मतलब कितना चौड़ा है, तो how much wide it is? 10 centimeter across. So 340 gram weight, 15 centimeter long and 10 centimeter cross wide. Understood? The weight of a heart.
The heart pumps out blood to arteries about 72 times per minute. Now, in a minute means in a minute 72 times a heart pumps the blood. मतलब एक मिनट में हमारा हार्ट कितने बार पंप करता है? 72 times. So it's amazing. Means in a minute 72 times हमारा जो हार्ट है ना वो पंप करता है. क्या पंप करता है? ब्लड टू द आर्टरीज. मतलब 72 टाइम्स अब हमारा हार्ट ब्लड सप्लाई करता है किसको? आर्टरीज को. दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. नाउ दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ हार्ट मतलब ये जो ब्लड आर्टरीज तक पंप करना है और 72 टाइम्स पर मिनट में इसको हार्ट को पंप होता है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? हार्ट बीट. अंडरस्टूड? अंडरलाइन इट. व्हाट यू हैव टू अंडरलाइन? दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट. अंडरस्टूड? नाउ द हार्ट बीट फास्टर इन चिल्ड्रन देन द ओल्ड. Now in children, if you compare the children to the old people, अगर हम बच्चों को old age people से compare किए तो बच्चों की हार्ट बीट फास्ट होती है old people से. old people की हार्ट बीट स्लो होती है और बच्चों की जो हार्ट बीट होती है ना वो बहुत फास्ट होती है. Newborn baby has a heartbeat of about 140 and a 3 years old about 100 per minute. Now can you imagine a newborn baby? A newborn baby means a small, very small baby. Newborn baby जो अभी born हुआ हो उसको बोलते हैं newborn baby. And newborn baby's heartbeat is about 140. Now newborn baby का heartbeat कितना होता है? 140. और 3 years old मतलब 3 साल की बेबी को 3 years old बच्चों का 100 per minute. Can you imagine? No. So this is the fact. Newborn baby जो छोटा छोटा बेबी अभी बॉर्न हुआ है उसका 140 हार्ट बीट होता है और 3 years old जो 3 साल का बच्चा है उसका 100 per minute मतलब एक मिनट में 100 बार. Understood? So this is the function of the heart. Now the heartbeat increases during exercise, excretion and excitement. Now heartbeat increases. When a heartbeat increases, अपनी heartbeat कब increase होती है? increase मतलब कब बढ़ती है? during exercise. Now when you do exercise, जब आप exercise करते हो running, jumping और any other exercise, your heartbeat beats very fast. अपनी heartbeat क्या होती है? बहुत fast होती है जब हम exercise करते हैं, right? And when you are getting excretion and excitement, जब आप excitement में होते हो, oh what it going to be और अभी क्या होगा क्या नहीं होगा. when you are excited then also your heartbeat increases. जब आप excitement में होते हो तभी भी आपकी heartbeat जो है वो बहुत ज़्यादा increase हो जाती है, बढ़ जाती है. take a 50 centimeter long tube, fit it tightly at the end of a plastic funnel. Place the funnel on your chest above the heart. Put the open end of the tube in one of your ears. You will hear the thumping sound of the heart clearly and loudly. Count the heartbeats per minute. Walk fast for 5 minutes. Now count the heartbeat again. Does it number more? Yes, take a 50 centimeter long tube. So here an experiment is given here. यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर में कर सकते हो. आपको क्या करना है? 50 सेंटीमीटर का लॉन्ग ट्यूब लेना है. मतलब एक छोटा 50 सेंटीमीटर का लंबी ट्यूब लेनी है और उसको कहाँ टाइट करना है? फिट इट टाइटली एट द एंड ऑफ अ प्लास्टिक फनल. मतलब प्लास्टिक का एक जो फनल होता है ना वहाँ पर उसको आपको टाइटली प्लेस करना है. Place the funnel on your chest above the heart. और जो फनल है उसको आपको अपने चेस्ट के ऊपर यानी कि अपने हार्ट के ऊपर प्लेस करना है, मतलब रखना है. Put the open end of the tube on your one ear. आपका ट्यूब का एक जो सेकंड पार्ट है
उस वो सेकंड पार्ट आप कहाँ रखोगे, आप अपने ईयर्स पे मतलब कान पे रखोगे। यू विल फील द हार्ट बीट ऑफ योर हार्ट, आप अपने हार्ट बीट का जो पंपिंग है, जब वो पंप करता है उसका बीट सुनोगे, है ना। और व्हेन यू वॉक फास्ट, जब आप वॉक एकदम फास्ट वॉक करते हो या रन करते हो, यू विल सी द डिफरेंस, द हार्ट बीट विल इंक्रीज। आप जब रनिंग करते हो या वॉकिंग करते हो एकदम फास्ट तो आपकी हार्ट बीट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टूड। The heart takes about 3/10 of a second to push blood into arteries. Now, how much second does heart takes? 3/10 second to push blood into arteries. मतलब arteries में blood को supply करने के लिए 3/10 seconds कौन use करता है, blood. Then it has a rest period of a half a second. At sleep, the heart slows down to 55 beats per minute. A large percentage of blood capillaries are active in sleep, so the heart doesn't have to push blood through them. Now, when you are sleeping in the night, जब आप रात में सोते हो, so the heart beat is slow. जब आप रात में सोते हो तो आपका हार्ट बीट क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। कितना, 55 बीट्स पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 55 बार आपका हार्ट बीट होता है। अ लार्ज परसेंटेज ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर इनएक्टिव। नाउ एट नाइट आपके बहुत से कैपिलरीज क्या हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव मीन्स वो एक्टिव नहीं होते हैं, वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कब, जब आप स्लीप करते हो, मतलब जब सोते हो। सो द हार्ट डजंट हैव टू पुश ब्लड थ्रू दैम, मतलब बहुत से कैपिलरीज जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो हार्ट क्या करते हैं, उन पे ब्लड सप्लाई करना बंद कर देते हैं। नाउ सी योर पेज नंबर 21. द पुश ऑफ हार्ट टू सेंड blood in the arteries is called blood pressure. Now what is called blood pressure? Blood pressure किसको बोलते हैं, the push of heart to send blood. हार्ट जब ब्लड को पुश करता है कहाँ जाने के लिए, आर्टरीज में जाने के लिए, तो वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर। कि जब हार्ट पुश कर रहा है ब्लड को कि तुम जाओ कहाँ, आर्टरीज में, तो वो प्रोसेस को, वो जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलेंगे। इफ देयर इज नो प्रेशर, blood cannot be flown up to the capillaries, then you will feel your body inactive and short of energy. When the blood cannot flow up, जब आपका ब्लड कैपिलरीज में फ्लो नहीं कर रहा है तो आप कैसा फील करोगे, यू विल फील इनएक्टिव, मतलब आप अपने बॉडी में एक्टिवनेस फील नहीं करोगे, और शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, मतलब आप अपने बॉडी में एनर्जी की शॉर्टेज फील कर सकते हो। द पुश और वेव ऑफ ब्लड मेक्स द आर्टरीज विच इज ऑलरेडी फुल ऑफ ब्लड to expand in order to receive the blood pumped into it. Now each time this happens we feel throb in every artery. तो ब्लड का जो पुश और वेव होता है वो क्या बनाता है, आर्टरीज बनाता है, विच इज ऑलरेडी फुल ऑफ ब्लड। आर्टरीज क्या है, पूरा ब्लड से फुल होता है, मतलब हाउसफुल हो जाता है। कौन, आर्टरीज। So to expand in order to receive the blood pump into it. Now each time this happens we feel a throb in every artery. means artery में जब blood अपने लिए जगह बनाता है तो हमें क्या, एक थ्रॉब, एक टाइप का ना थ्रॉब फील होता है कि we can understand now the blood is pumped into arteries, मतलब blood pump हो रहा है अपने arteries में। The expansion of an artery following each heartbeat is called pulse. Now what is called pulse? Not the candy. Pulse मतलब candy chocolate नहीं, pulse chocolate नहीं। The expansion of an artery मतलब artery का जब expansion होता है following each heartbeat
इज कॉल्ड पल्स। मतलब ईच हार्ट बीट को जब फॉलो करता है कौन, आर्टरी, ठीक है, तो उसका एक्सपांशन होता है जिसको पल्स बोलते हैं। अपने हाथ की जब डॉक्टर है ना पल्स चेक करता है, राइट, उसको बोलते हैं। सो द प्लेस वेयर एन आर्टरी इज नियर द स्किन वी कैन फील द पल्स। नाउ द प्लेस वेयर एन आर्टरी इज नियर द स्किन, स्किन के पास होती है आर्टरी, वी कैन फील द पल्स। यहाँ हाथ लगाने के टाइम अपन थोड़ा सा पुश करो, है ना, हमको क्या फील होता है, अपनी पल्स फील होती है। द wrist, टेम्पल एंड एंकल आर सच प्लेसेस। नाउ wrist, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये पोर्शन, यस, इसे जहाँ अपन जब दबाते हैं तो अपने को क्या पल्स फील होती है। अंडरस्टूड? It is convenient to note the pulse rate of the artery in the wrist area. The pulse is the same as heartbeat, 72 times per minute in a normal person. Now, पल्स की बीटिंग और हार्ट बीट की बीटिंग वन एंड द सेम है अपनी wrist एरिया की, है ना। तो कितना है पल्स रेट, सेम एज हार्ट बीट। हार्ट बीट की रेटिंग और पल्स की रेटिंग सेम होती है, 72 टाइम्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में 72 टाइम्स बीट होता है नॉर्मल पर्सन की, मतलब नॉर्मल इंसान की। डॉक्टर्स काउंट द पल्स रेट एट द wrist or at the heart using a stethoscope. Now you know that doctors are having stethoscope. डॉक्टर्स के पास जो stethoscope होता है उसको अपने पल्स पे लगाकर वो अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट चेक करते हैं कि कब कंटिन्यूएशन में है कि नहीं है। क्लियर? टू फाइंड आउट सम डिसीजेस इन ऑल केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ germs, the heart tends to beat faster, thus increasing the pulse rate and temperature. It can also find out whether the flow of blood is normal in a particular part or not. Now when doctor are testing your pulse rate, doctors जब अपनी pulse rate और heart beat को टेस्ट करता है stethoscope के थ्रू, तो उनको क्या मिलता है, if the pulse rate and heart beat are very fast, अगर आपकी हार्ट बीट और पल्स रेट बहुत फास्ट है तो डॉक्टर कैसे पता चलता है कि आपके इसमें कुछ डिसीजेस है। यस, ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपकी हार्ट रेट और पल्स रेट फास्ट है तो ये क्या है, इन्फेक्शन के कारण है, राइट। इट इज ऑल द केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ जर्म्स। किसके इन्फेक्शन है, जर्म्स के इन्फेक्शन है। द हार्ट टेंड टू बीट फास्टर, आपका हार्ट बीट और पल्स रेट फास्ट है तो ये इन्फेक्शन की वजह से है जो जर्म्स अपने बॉडी में पूरा फैलाते हैं। Understood? The increasing of pulse rate and temperature, he can also find out whether the flow of blood is normal in a particular part or not. इसी पल्स रेट और हार्ट बीट के रेट से डॉक्टर क्या पता करवाता है कि आपका ब्लड फ्लो, बॉडी में जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो नॉर्मल है कि नहीं, पर्टिकुलर है कि नहीं है। द रिदम बीट ऑफ द हार्ट सेंड ब्लड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. This blood carries oxygen to each cell and carries carbon dioxide back to the lungs to exhale. It transports digestion food from the intestine, fist to the liver. Now the rhythmic beat of heart send blood to every cell body. मतलब हार्ट बीट का जो रिदम है, जो बीट्स है, वो क्या करता है, एवरी सेल को क्या सप्लाई करता है, ब्लड। मतलब हमारी बॉडी में जो सेल है, छोटे छोटे जो सेल है ना, उसको ब्लड सप्लाई करता है कौन, हार्ट। हार्ट पूरे बॉडी के सेल को ब्लड सप्लाई करता है। द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, जैसे कि सबको पता है ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। एंड लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, ऑक्सीजन कैरी करने के बाद हम जो कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है ना, वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, एक्सहेल यानी कि बाहर निकालने के लिए। इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और ये क्या कैरी करता है,
क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। फूड जो हम खाते हैं कहाँ कैरी करता है? इंटेस्टाइन में। फर्स्ट टू द लिवर एंड देन टू द एवरी सेल, मतलब जो खाना हम खाते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू पहले लिवर में जाता है और उसके बाद एवरी सेल ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल में फूड डिलीवर यानी कि ट्रांसफर होता है। द फूड इट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम सेवरल जर्म्स। नाउ फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम सेवरल जर्म्स, बहुत से जो जर्म्स होते हैं उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड clothing and thus save from loss of blood and help in the healing of wound. It maintains the balance of water in the body and contains body temperature. Now, blood clotting. Blood clotting means to save the blood, to save the loss of blood, मतलब अपना बॉडी का जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको सेव करता है। कौन? ब्लड क्लॉथिंग। When we get wound, जब हमें चोट लगती है ना, हम हील करते हैं मतलब बैंडेज करते हैं ना, तो ब्लड क्लॉथिंग क्या करता है? जो ब्लड लॉस होता है ना अपना, उसको हील करता है। एंड मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ वाटर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में जो वाटर है ना उसको बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। एंड कंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, मतलब अपने बॉडी टेम्परेचर को भी वो मेंटेन यानी कि कंटेन्स करता है। ईटिंग मोर फैट, exerting more and excessive or no physical work exerts undue pressure on the heart. It may lead to heart attack or death. Therefore, eat less fat, be cheerful and do mild and regular exercise or walk to keep you healthy and walk to keep your heart fit. Now what is given here? Eating more fat. Fat आप सबको पता है कि फैट किस में होता है? फैट जैसे कि घी में होता है, पोटैटोज में ज़्यादा फैट होता है, राइट? और आपके चिप्स, कुरकुरे, जो वेफर्स आप खाते हो उसमें भी फैट होता है। तो फैट क्या करता है? अपने बॉडी को ज़्यादा फिजिकल नहीं, अपने बॉडी में जो वेट है उसको, वेट को गेन करता है। और आप अगर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट प्लेइंग गेम्स, अंडरस्टूड, यू आर प्लेइंग वीडियो गेम, सिटिंग ओनली, आप बैठे बैठे ही घर पे वीडियो गेम खेलते हो, मोबाइल लेके बैठे रहते हो, कोई फिजिकल वर्क नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो और वॉकिंग भी नहीं करते हो, है ना? तो ये क्या करता है? इट एक्सर्ट अनड्यू प्रेशर ऑन हार्ट, मतलब ये एक प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट के ऊपर, क्योंकि आप लोग को ही वॉकिंग भी नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, है ना? तो ये क्या करते हैं? हार्ट के ऊपर प्रेशर करता है। एंड इट में लीड्स टू हार्ट अटैक और डेथ। बैठे बैठे आपका फैट इंक्रीज होगा, आप मोटे हो जाओगे, है ना? जो प्रेशर वो हार्ट के ऊपर जाएगा, पूरा प्रेशर आपका हार्ट के ऊपर जाएगा, क्योंकि आप कोई एक्सरसाइज, वॉकिंग कुछ नहीं कर रहे हो, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, है ना? और अगर हार्ट के ऊपर प्रेशर आया, इट लीड्स टू हार्ट अटैक और डेथ। हार्ट के ऊपर प्रेशर आया तो वो कहाँ जाएगा? हार्ट अटैक ही होगा ना। सो देयरफॉर ईट लेस फैट, आप फैट कम खाइए, है ना? रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एंड कीप योर हार्ट वेरी फिट, हेल्दी एंड वेल्दी। दिस विल हेल्प यू टू बी हेल्दी। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखते हो तो आप भी हेल्दी रहोगे, फिट और फाइन रहोगे इन द लाइफ। सो हियर वी एंड आवर टुडेज लेसन, द रिदम ऑफ लाइफ। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है, अंडरस्टूड? सो इट्स द टाइम टू टेक लीव। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। सी यू सून, बाय बाय।